So hi guys, let us learn some sentences. Along with some sentences, we will learn some vocabularies. You know what happens if we want to speak English in a perfect manner means we should have the knowledge of vocabularies as well as the structures of the sentences. So today I will try to teach you 5 different sentences. So you just pay over hit to this thing. Without any further ado, let's get started guys. So my first question is like this. I just want to get to know about this thing that to what extent you know English. I am just going to ask you a question. You just let me know about this thing, whether you know the answer or not. If you don't know the answer, don't worry, I will teach you. So you just want to introspect your own self, guys. So that's why I'm just going to ask you a question. You have to introspect yourself. It means you have to test yourself. You have to put yourself to test to come to know about one thing, that to what extent you know English. That's why I'm just going to ask you these questions. If you know the answer, that is very good. See here, he told me that he will meet her. Can you locate the error in this sentence? You just get to know about this thing, to what extent you know English grammar, because English grammar matters a lot. So my question is like this. He told me that he will meet her. Whether is there any error in this sentence or this sentence is correct? Can you please let me know about this thing? क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? आप देखिए आप ग्रामर किस लेवल तक आता है. क्या आप इस सेंटेंस में एरर ढूंढ सकते हैं? He told me that he will meet her. इसमें कितने एरर्स हैं और वो कहां पे है? कैन यू लोकेट द एरर्स गाइस? अगर आप ढूंढ पाते हैं एरर्स फर्स्ट सेंटेंस में तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर आप नहीं ढूंढ पाएंगे एरर्स फर्स्ट सेंटेंस में, डोंट वरी, आई विल टीच यू सम ग्रामर रूल्स. यस, आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स गाइस. कैन यू लोकेट द एरर्स इन द फर्स्ट सेंटेंस? क्या आप पहले सेंटेंस में कुछ एरर्स ढूंढ पाएंगे और उनको सही कर पाएंगे विथ करेक्ट वर्ड्स? फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. कुछ लोगों ने आंसर दिया होगा, कुछ लोगों ने आंसर नहीं दिया होगा, कुछ के आंसर्स गलत भी होंगे. सो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग वेदर यू टोल्ड करेक्ट आंसर्स और इनकरेक्ट आंसर्स विद इन 2 मिनट्स. लेट अस लर्न गाइस. देखिए इस सेंटेंस में क्या गलती है? He told me that he will meet her. According to grammar, it is incorrect, guys. According to grammar, it is incorrect. So, do you know about narration, guys? If you are going to appear for competitive exams, it means that you have heard about this thing, that narration means about reported speech, change direct sentence into indirect sentence. So this sentence falls under the category of narration in competitive exams. If you are going to appear for competitive exams, you will encounter this word, that is narration. This portion will be there in the examination. So let us understand what is the error in first sentence. First sentence में क्या गलती है, चलो देख लेते हैं. ये जो सेंटेंस है ये नरेशन में का है. नरेशन मीन्स रिपोर्टेड स्पीच, उसमें का सेंटेंस है. He told me. देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, कहां पे said यूज करना है या से आईडी said, कहां पे told यूज करना चाहिए. told यहां पे क्यों यूज करना चाहिए? अगर told, अगर यहां पे कोई नेक्स्ट कोई इंसान है तब हम लोग told यूज करते हैं. अगर आगे कोई इंसान नहीं है तो he said. क्या हो जाएगा? he said ऐसे हो जाएगा. अगर आगे कोई यहां पे कोई इंसान नहीं है तो he said that he will meet her. अभी भी गलती है सेंटेंस में, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूं. अगर यहां पे आगे कोई नहीं है, he said के बाद कुछ भी नहीं है, तो वहां पे देखिए, अगर यहां पे he said to me, अगर said to me आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? वो said to me जाकर told हो जाएगा. अगर said to के बाद कोई इंसान आता है, he said to her, he said to me, he said to them, he said to us. अगर said के बाद to आकर कुछ और ऑब्जेक्ट आ जाता है, me, her या कुछ भी ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है,
तब हम लोग नीचे इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड यूज करते हैं। सिंपल चीज है, सेड टू हर, सेड टू मी, सेड टू देम, सेड के बाद टू आकर कोई इंसान आता है तो हम लोग नीचे इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वहां पे टोल्ड यूज करते हैं। टोल्ड देखिए, और टोल्ड आने के बाद टू नहीं यूज होता। टोल्ड मी, ही टोल्ड टू मी नहीं बोलना चाहिए, ही टोल्ड मी। वैसे अगर सेड आता है तो टू आएगा, ही सेड टू मी। याद रखिए, टोल्ड आया तो टू नहीं आएगा। तो यहां पे क्या एरर है देखिए, ही टोल्ड मी, तो टू तो मैंने यूज नहीं किया, तो बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ही टोल्ड मी दैट, यहां पे देखिए, जब हम रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं, तो विल जाकर हो जाएगा गाइज वुड। विल जाकर क्या हो जाएगा, ये विल गलत हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा वुड, अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं तो। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में हम लोग विल यूज कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग विल को निकालकर वुड लगा देते हैं। तो यहां पे गलती क्या है देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही वुड मीट हर, विल के बदले आना चाहिए था वुड। अब ये सही हो गया। देखिए, हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात, उसकी बातों को रिपीट कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो हम विल के बदले क्या लेते हैं, वुड लेते हैं, वुड। याद रखिए, तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा सही, ही टोल्ड मी दैट ही वुड मीट हर, तो विल के बदले वी हैड टू यूज वुड। सो देयर वाज एन एरर, नाउ वी लोकेटेड दैट। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। देखिए, तो क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है इसलिए हम लोग विल के बदले वुड ले लिए। सेकेंड सेंटेंस, इफ आई वॉज यू आई विल नॉट डू इट। डू यू नो अबाउट ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस गाइस? बेस्ड ऑन इमेजिनेशन पे भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं। देखिए, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, अनरियल सेंटेंसेस। तो कैन यू लोकेट द एरर इन सेकेंड सेंटेंस? You just test yourself guys, to what extent you know English. I just want to get to know about this thing, that to what extent you know English grammar. Otherwise I will teach you. If you don't know, don't worry. So can you locate the error in second sentence? ये second sentence में कहां पे गलती है या गलतियां है, क्या आप ढूंढ सकते हैं? क्या आपका ग्रामर इतना स्ट्रांग है कि आप यहां गलतियां ढूंढ सकते हो सेकेंड सेंटेंस में? If I was you, I will not do it. क्या कहां पे गलतियां हैं आप बता सकते हैं? आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। आप कमेंट में आप लिख सकते हैं कि गलतियां कहां पे है। टेक 5 सेकेंड्स गाइस। ओके, क्या आपने सॉल्व कर दिया कहां पे गलतियां हैं? नहीं तो कोई बात नहीं, लेट अस लर्न नाउ। देखिए, ये है अनरियल सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी कुछ लोग बोलते हैं, मतलब ये बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ये रियल सेंटेंस नहीं होते। जैसे कि एक एग्जांपल, इफ आई वाज यू, यहां पे वाज नहीं लेना चाहिए गाइस, क्योंकि ये अनरियल सेंटेंस है। तो ग्रामर के रूल्स के हिसाब से हमें क्या लेना पड़ेगा, वाज नहीं, यहां पे हमें लेना पड़ेगा वर। यहां पे हमें लेना पड़ेगा WERE, वर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अनरियल सेंटेंस है, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। अगर मैं देखिए, इफ आई वर यू, वास के बदले वर आ जाएगा ग्रामर के हिसाब से, राइट? क्योंकि ये अनरियल सेंटेंस है इसलिए। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता या अगर मैं तुम्हारी प्लेस में होता, आई विल नॉट डू इट, यहां पे भी एक गलती है, यहां पे भी हम लोग विल नहीं यूज कर सकते, यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा वुड। हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा वुड। याद रखिए, ये अनरियल सेंटेंसेस है, तो यहां पे वास के बदले हमें वर लेना पड़ेगा, यहां पे विल के बदले वुड लेना पड़ेगा। कैसे हो जाएगा सेंटेंस? इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट। अगर मैं तुम होता या अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये काम नहीं करता। इस टाइप के सेंटेंसेस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। देखिए, इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू गाइज आर गोइंग टू एनकाउंटर क्वेश्चंस लाइक दिस, सो यू शुड बी फैमिलियर विद द रूल्स ऑफ ग्रामर गाइज। सो यहां पे क्या होना चाहिए देखिए, क्योंकि अनरियल सेंटेंसेस लिए वाज नहीं आता। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता या मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट डू इट, विल के बदले हो जाएगा
वुड। आई होप यू अंडरस्टूड। देखिए अब नेक्स्ट, रीमा सिंग्स वेरी वेल सो आई कैन। यहां पे भी एक गलती है। देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये थर्ड वाला सेंटेंस, इस टाइप का सेंटेंस पूछा गया है। रीमा सिंग्स वेरी वेल सो आई कैन। रीमा बहुत अच्छा गाना गाती है, वैसे ही मैं भी गाता हूं। इफ वी वॉन्ट टू अवॉइड रिपीटिशन, देन ऑल्सो वन रूल इज देयर इन ग्रामर। Do you know about that rule, guys? What is the error in this third sentence? Rima sings very well, so I can. Do you know about the avoiding of repetition? One rule is there in English grammar. If you know about it, you know the answer. If you don't know, don't worry, I will teach you. It sounds correct. See, almost all people, they speak like this, but according to grammar, it is incorrect, guys. See, we have to comply with all the rules of grammar. We don't have to defy the rules, guys, isn't it? Then only we will become perfect at English. So see here, Rima sings very well, and when we are using so, remember this thing, when we are using so, by the way, why we are making use of so here? Because we want to avoid repetition of the sentences. That is why we are using so. But what grammar says here, inversion rule is applied. We have to apply inversion rule. Now what does the mean of inversion rule? I will let you know about this thing within 2 minutes, guys. Pay over it to this thing. So I hope it is getting more interested now. So now, Rima sings very well, so I can. No, when we are using so, then grammar says that it falls under the category of इन्वर्जन रूल। अब इन्वर्जन रूल मतलब हिंदी में भी कुछ समझा देता हूं मैं। अब यहां पे सो आई कैन, तो ये इन्वर्जन रूल में क्या हो जाएगा, ये आई इधर आ जाएगा, आई, ये है इन्वर्जन रूल। पहले जो है हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, उसके बाद वो सब्जेक्ट आता है, इसी को इन्वर्जन रूल बोलते हैं। फिर भी वो आंसर ही होता है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से हम इसको इन्वर्जन रूल बोलते हैं, इसलिए हम आई से पहले कैन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नहीं होता, ये आंसर ही होता है, लेकिन ऐसा ग्रामर का रूल है, याद रखिए। सो कैन आई, आप पूरा नहीं बोल रहे। अगर आपको पूरा सेंटेंस रिपीट करना है तो कैसे बोलोगे, रीमा सिंग्स वेरी वेल एंड आई ऑल्सो सिंग वेरी वेल, आई सिंग वेरी वेल एज वेल, आई सिंग वेरी वेल टू। ऐसे आप पूरा सेंटेंस रिपीट करोगे, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग सो यूज करते हैं। याद रखिए, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वर्जन रूल। इन्वर्जन रूल मींस फर्स्ट वी टेक हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, बट इट इज आंसर, इट इज नॉट अ क्वेश्चन। देखिए कैसे हो जाएगा, रीमा सिंग्स वेरी वेल सो कैन आई। देखिए सुनने में इट साउंड्स इनकरेक्ट, अरे कैन तो पहले क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहां पे सर बोल रहे हैं कि कैन पहले आता है, उसके बाद आई आता है। हाँ, क्योंकि ये इन्वर्जन रूल का एक ग्रामर में एक रूल है, इन्वर्जन बोल के, तो हम वहां पे हेल्पिंग और पहले लेते हैं, सब्जेक्ट बाद में लेते हैं, लेकिन वो फिर भी आंसर ही होता है। ये ग्रामर का रूल है, याद रखिए आप लोग। आप बोल सकते हैं कैन अगर हम पहले लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा ना सर, लाइक एग्जांपल, कैन आई सिट हियर, कैन आई डू दैट वर्क, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल क्वेश्चन है यहां पे, लेकिन सो आने के बाद, ये सो आने के बाद हेल्पिंग और पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, क्योंकि ये ग्रामर का एक रूल है, इन्वर्जन रूल। ये फिर भी आंसर ही रहता है। सो आई कैन बोले तो ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा, पहले हेल्पिंग और बाद में सब्जेक्ट। ये ग्रामर का रूल है, याद रखिए। ऐसे एग्जाम्स ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ग्रामर के रूल्स नहीं पता रहता, और वो क्या कर देते हैं, आई कैन, क्योंकि मुझे आंसर बोलना है, बिल्कुल क्या करते हैं, आई के बाद कैन लगाते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है ग्रामर के हिसाब से। याद रखिए आप लोग, सो कैन आई आएगा, बहुत डिफरेंट लग रहा होगा आपको, तो यही ग्रामर का रूल है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू स्पीक इंग्लिश। इसका शॉर्ट आंसर क्या होगा, देखिए, डू यू स्पीक इंग्लिश। इसमें कोई गलती है, डू यू स्पीक इंग्लिश,
शॉर्ट आंसर यस आई कैन, यस आई कैन। क्या आप इसमें कोई गलती ढूंढ सकते हैं? चलो आप अपना ग्रामर टेस्ट कर लीजिए, आपको कितना ग्रामर आता है। वेदर यू गाइज आर स्पीकिंग परफेक्ट इंग्लिश और जस्ट स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश। आप कच्चा पक्का इंग्लिश बात कर रहे हैं कि ग्रामेटिकली परफेक्ट इंग्लिश बात कर रहे हैं? आप खुद टेस्ट कर लीजिए अपने आप को। इसमें कोई गलती है? डू यू स्पीक इंग्लिश? आंसर यस आई कैन। ये सही है कि गलत है? इफ वी वांट टू टॉक अबाउट शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। नो, नहीं पता चल रहा है? चलो कोई बात नहीं, पता करते हैं 1 मिनट के अंदर। डू यू स्पीक इंग्लिश? यस शॉर्ट आंसर में लगाया जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया है ना सेंटेंस के अंदर, यहां पे डू, तो इसी को हमें शॉर्ट आंसर में लेना पड़ता है। डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई डू, यस आई डू, यस आई डू। आंसर क्या हो जाएगा गाइस? यस आई डू। देखिए शॉर्ट आंसर ऐसे रहेगा, यस आई डू। इतना ही शॉर्ट आंसर। अगर नहीं, डू यू स्पीक इंग्लिश? नो आई डोंट। नेगेटिव बोलना है तो नो कॉमा आई डोंट, आई डोंट, बस खत्म शॉर्ट आंसर। नो आई डोंट। जो हेल्पिंग वर्ब है उसी हेल्पिंग वर्ब को हम शॉर्ट आंसर में लेते हैं, याद रखिए। यहां पे हमने डू लिया तो इसीलिए यहां पे डू ही आना पड़ेगा, कैन वो सब नहीं ले सकते, राइट? डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई डू। क्या आप इंग्लिश बात करते हो? हाँ मैं इंग्लिश बात करता हूं या करती हूं, लाइक दैट, कर सकती हूं। ग्रामर के हिसाब से कैन आप स्पीकिंग करते समय कैन यूज करते होंगे, लेकिन ग्रामर के हिसाब से हमें आंसर शॉर्ट आंसर देना है तो वही हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। अगेन दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखिए आपको, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश गाइज? देखिए मैं सभी को पूछ रहा हूं, आप सब लोगों को, डू यू वांट टू स्पीक, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश गाइज? यस वी डू। यस ऐसे बोलेंगे आप। कैन यू हेल्प मी? यस आई कैन, नो आई कांट, ऐसे बोलेंगे शॉर्ट आंसर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट हैड नॉट क्रॉस्ड माई माइंड। इट हैड नॉट क्रॉस्ड माई माइंड दैट दे माइट नीड माई हेल्प। देखिए सेंटेंस, इट इट हैड नॉट क्रॉस्ड माई माइंड, पास्ट परफेक्ट टेंस। इट had not crossed my mind that they might need my help. Is there any error in this last sentence guys? Cross my mind मतलब मुझे ये सूझा ही नहीं, मेरे दिमाग में आया ही नहीं, ऐसा इसका मतलब। it did not cross my mind, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, इसके बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं, ऐसे मतलब मुझे ये आइडिया आया ही नहीं। इट डिड नॉट क्रॉस माई माइंड, ऐसा इसका मतलब होता है हिंदी में। लेकिन इसमें कोई गलती है। इट हैड नॉट क्रॉस्ड माई माइंड दैट दे माइट नीड माई हेल्प। ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया, ये आइडिया मुझे नहीं आया कि उन लोगों को शायद मेरी जरूरत थी। ये चीज मेरे दिमाग में नहीं आया, क्या बोलकर? कि उन लोगों को मेरी मदद शायद चाहिए था। इसमें कोई गलती है गाइस? इस लास्ट सेंटेंस में क्या आप ढूंढ सकते हो गलती को? चेक कीजिए अपना इंग्लिश, चेक योर ग्रामर, चेक योर इंग्लिश। Yeah, for your kind information, there is no any error in this sentence. There is no error in this sentence. It had not crossed my mind that they might need my help. इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया क्या कि उन लोगों को शायद मेरी जरूरत है, शायद उनको मेरी जरूरत थी। ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि शायद उनको मेरी जरूरत थी या शायद उनको हेल्प की जरूरत थी। ये मेरे दिमाग में नहीं आया। शायद मेरे हेल्प की जरूरत थी उनको, ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया।
देखिए आज कितने इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रामर रूल्स हम लोग सीख चुके हैं। तो वैसे ही आप डिफरेंट टाइप के ग्रामर रूल्स सीखना चाहते हैं, वोकैब्युलरी सीखना चाहते हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।